हेलो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में हमारा सीसैट पेपर का जो पैसेज सेकंड है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले पैसेज पढ़ते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड्स लूज देयर रोल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इफ द पेस्ट इवॉल्व रेजिस्टेंस the evolution of pesticide resistance is simply natural selection in action। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया कि अंडरलाइन करना है हमें फर्स्ट 2 to 3 लाइन्स। So, it almost certain to occur when vast numbers of a genetically variable population are killed. One or a few individuals may be unusually resistant, perhaps because they possess an enzyme that can detoxify the pesticide. If the pesticide is applied repeatedly, each successive generation of the pest will contain a larger proportion of resistant individuals. Pests typically have a high intrinsic rate of reproduction, and so a few individuals in one generation may give rise to hundreds or thousands in the next, and resistance spreads very rapidly in a population. This problem was often ignored in the past, even though the first case of DDT, dichlorodiphényl trichloroethane resistance, was reported as early as 1946. There is exponential increase in the numbers of invertebrates that have evolved resistance and in the number of pesticides against which resistance has evolved. Resistance has been recorded in every family of arthropod pests, including dipterans such as mosquitoes and houseflies, as well as beetles, moths, wasps, fleas, lice and mites, as well as in weeds and plant pathogens. Take the Alabama oliveworm, a moth pest of cotton, as an example. It has developed resistance in one or more regions of the world to aldrin, DDT, dieldrin, endrin, hindane and toxaphene. If the chemical pesticides brought nothing but problems, if their use was intrinsically and acutely unsustainable, then they would already have fallen out of widespread use. This has not happened. Instead, their rate of production has increased rapidly. The ratio of cost to benefit for the individual agricultural producer has remained in favor of pesticide use. In the USA, insecticides have been estimated to benefit the agricultural products to the tune of around $5 for every $1 spent. Moreover, in many poorer countries, the prospect of imminent mass starvation or of an epidemic disease are so frightening that the social and health costs of using pesticides have to be ignored. In general, the use of pesticides is justified by objective measures such as lives saved, economic efficiency of food production, and total food produced. In these very fundamental senses, their use may be described as sustainable. In practice, sustainability depends on continually developing new pesticides that keep at least one step ahead of the pest. Pesticides that are less persistent, biodegradable and more acutely targeted at the pest. जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट के जो 2 to 3 लाइन्स हैं वो भी हमें अंडरलाइन करना है। Because this is the conclusion of the passage. Now let's go to the क्वेश्चन पार्ट। पैसेज बहुत बड़ा है, इसलिए डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये पैसेज बहुत ही इजी है। इसमें बताया गया है कि जो ऑर्गेनिज़म्स है, जो पेस्ट्स है, वो
पेस्टिसाइड्स को कैसे रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, रेजिस्टेंट करते हैं, और वो कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, रेजिस्टेंस का स्प्रेड कैसे हो रहा है, वो सब इसमें बताया गया है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये भी बताया गया है कि हमें बायोडिग्रेडेबल पेस्ट का यूज़ करना चाहिए, और ऐसे पेस्ट का हमें निर्माण करना चाहिए कि जो सस्टेनेबल हो और जो कि पेस्टिसाइड को रेजिस्ट ना कर सके, पेस्ट ऐसे हो, बायोडिग्रेडेबल हो और पेस्ट पे टारगेटेड हो। तो पैसेज हमने रीड कर लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। द इवोल्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इज नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन। जो ये स्टेटमेंट दिया गया है हमारे पैसेज में, इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका निहितार्थ क्या है। इम्प्लीकेशन मीन्स नथिंग बट द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। निहितार्थ क्या है इस स्टेटमेंट का, ये बताना है हमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स टू हैव पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंस। सेकेंड स्टेटमेंट है पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंस अमंग ऑर्गेनिज्म इज अ यूनिवर्सल फेनोमेनन। थर्ड स्टेटमेंट है सम इंडिविजुअल्स इन एनी गिवन पॉपुलेशन शो रेजिस्टेंस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। सो जो और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट स्टेटमेंट है कि नन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है, इट इज़ वेरी नेचुरल फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म टू हैव पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे जो है कि वेरी, ये जो वर्ड है वो एक्सट्रीम वर्ड यूज़ किया गया है, और ऐसा वर्ड हमें पैसेज में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए इस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। सो इस ऑप्शन को हमें एलिमिनेट कर देना है। द सेकंड है कि पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंस अमंग ऑर्गेनिजम्स इज़ अ यूनिवर्सल फेनोमेनन। यूनिवर्सल फेनोमेनन की जो बात कही गई है इस स्टेटमेंट में, ये भी आपको पैसेज में कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा, इसलिए आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द पैसेज है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हम कैंसिल कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। थर्ड स्टेटमेंट है सम इंडिविजुअल्स इन एनी गिवन पॉपुलेशन शो रेजिस्टेंस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। सो ये स्टेटमेंट जो है हमें पैसेज में दिया गया है, तो देखते हैं हम अभी कि if the pesticides is applied repeatedly, each successive generation of the pest, if the pesticide is applied repeatedly, each successive generation of the pest will contain a larger proportion of resistant individuals. Pests typically have a high intrinsic rate of reproduction, and so a few individuals in one generation may give rise to hundreds or thousands in the next, and resistance spreads very rapidly in the population. And here is also given one or a few individuals, सभी few मतलब some individuals may be unusually resistant. so जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा वो करेक्ट है कि सम इंडिविजुअल्स इन एनी गिवन पॉपुलेशन शो रेजिस्टेंस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स। सेकंड है हमारा क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द पैसेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है, यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स हैज़ बिकम इम्पेरेटिव इन ऑल द पुअर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर जो ऑल वर्ड यूज़ किया गया है वो एक्सट्रीम है, इसलिए हम ये जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर देंगे सीधी तरह हम इसे एलिमिनेट कर देंगे। यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स हैज़ बिकम इम्पेरेटिव इन ऑल द पुअर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पैसेज में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करना पुअर कंट्रीज़ के लिए इम्पेरेटिव है और सारे पुअर कंट्रीज़ के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। पैसेज में कहा गया है कि मोर ओवर इन
इन मेनी पुअर कंट्रीज़, क्या कहा गया है, मेनी पुअर कंट्रीज़। ऑल वर्ड का यूज़ बिल्कुल भी किया गया नहीं है इधर, इसलिए वो वर्ड हमें एलिमिनेट कर देना है, ताकि वो ऑप्शन एलिमिनेट कर देना है हमें। सो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर देने के बाद आप गिवन ऑप्शंस में से ए ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, सी को एलिमिनेट कर सकते हो और डी को एलिमिनेट कर सकते हो, और आपका राइट आंसर जो होगा वो बी होगा, थर्ड 3 ओनली। सो आफ्टर रीडिंग द first statement you can eliminate A, C and D, and using the elimination method you can come to right answer directly. So third statement, one pest can develop resistance to many pesticide. So one pest can develop resistance to many pesticides. This is the right answer given. And second, chemical pesticides should not have any role in the sustainable agricultural. ये भी पैसेज में कहीं पर भी नहीं कहा गया है, और यहाँ पर भी एक्सट्रीम वर्ड का यूज़ आया है कि एनी। तो पैसेज में क्या कहा गया है कि केमिकल पेस्टिसाइड्स लूज देयर रोल इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इफ द पेस्ट इवॉल्व रेजिस्टेंस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि chemical pesticides should not have any role in the sustainable agriculture, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है, इसलिए ये ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे, और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही स्टेटमेंट है। थर्ड क्वेश्चन है, दो द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स इज नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयर वाइड स्प्रेड यूज हैज़ नॉट वेन, वाई। कि जो क्या कहा गया है इसमें कि यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स इज़ नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो कि प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ करने से, वो हमें नोन है, फिर भी हम उसका यूज़ जो है वो शुरू ही रखा गया है, उसका यूज़ जो है वो बैन नहीं हुआ है, बंद नहीं हुआ है। तो ऐसा क्यों है, यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या है, तो हम स्टेटमेंट्स रीड करते कि अल्टरनेटिव्स टू केमिकल पेस्टिसाइड डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। यहाँ पर भी एक्सट्रीम वर्ड का यूज़ किया गया है, एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं, कि अल्टरनेटिव कोई है ही नहीं केमिकल पेस्टिसाइड के लिए, ऐसा कहा गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसलिए हम इसे एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड स्टेटमेंट है, न्यू पेस्टिसाइड्स आर नॉट इन्वेंटेड एट ऑल। यहाँ पर भी एक्सट्रीम वर्ड यूज़ किया गया है कि न्यू पेस्टिसाइड्स जो है उसका इन्वेंशन ही नहीं हुआ है बिल्कुल भी, ऐसा कहा गया है, और ये पैसेज में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो इसीलिए बी ऑप्शन भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ए एंड बी को एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास सी एंड डी ऑप्शन रहेगा, और ए एंड बी एलिमिनेट हो जाने के बाद हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स होगा, क्योंकि पेस्टिसाइड्स आर कि पेस्टिसाइड्स आर बायोडिग्रेडेबल जो कहा गया है, ये पेस्टिसाइड्स केमिकल पेस्टिसाइड्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, इसलिए सी स्टेटमेंट भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और ए बी सी को एलिमिनेट करने के बाद हम सीधा कह सकते हैं कि नन ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। सो थर्ड जो है, हाउ डू पेस्टिसाइड्स एक्ट एज एजेंट्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट इंडिविजुअल्स इन एनी पेस्ट पॉपुलेशन। तो पेस्टिसाइड्स जो है कि वो एजेंट्स की तरह कैसे एक्ट करते हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इंडिविजुअल्स इन एनी पेस्ट पॉपुलेशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ पॉसिबल दैट इन अ पेस्ट पॉपुलेशन द इंडिविजुअल्स विल बिहेव डिफरेंटली ड्यू टू देयर जेनेटिक मेकअप। Yes, this is not directly given in the passage, but we can say this that it is possible that in a pest population the individuals will behave differently due to their genetic makeup.
एंड सेकंड स्टेटमेंट है पेस्ट डू possess द एबिलिटी टू डिटॉक्सिफाई द पेस्टिसाइड्स. Yes, this is given in the passage directly. And third statement is evolution of pesticides resistance is equally distributed in pest population. So evolution of pesticides resistance is equally distributed तो नहीं है, और ये अपोजिट है जो कि हमें पैसेज में इंफॉर्मेशन दिया है इसके अपोजिट है, इसलिए इसे हम इलिमिनेट कर देंगे. तो इवोल्यूशन ऑफ पेस्टिसाइड्स रेजिस्टेंस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पेस्ट पॉपुलेशन. तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं होता है, तो हम अभी पैसेज में देखते हैं. कि पेस्ट typically have a high intrinsic rate of reproduction, and so a few individuals in one generation may give rise to hundreds or thousands in the next, and resistance spreads very rapidly in a population. And यहाँ पर भी कहा गया है कि one or few individuals may be unusually resistant. तो जो वो रेजिस्टेंस है वो पूरे पेस्ट में या पूरे जनरेशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है. तो ये कहीं पर भी दिया गया नहीं है, इसलिए वो जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है. इसलिए हम ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इसे एलिमिनेट कर देंगे, और इसे एलिमिनेट करने के बाद हमारे पास ए एंड बी रहेगा. अभी हम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो अभी हम देखते हैं पैसेज में. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है हमारा कि पेस्ट डू possess डिटॉक्सिफाई एंजाइम. सो द वन और few individuals may be unusually resistant, perhaps because they possess an enzyme that can detoxify the pesticide. So this is given in the passage. So from the passage we can say that कि second statement जो है हमारा, second जो statement है हमारा वो सही स्टेटमेंट है, ये हम कह सकते हैं. और सेकंड स्टेटमेंट ए में तो नहीं दिया गया है, बी में दिया गया है, इसलिए बी ही सही होगा हमारा. बी जो ऑप्शन है वो हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि ए जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली हमें कहीं पर भी दिया गया नहीं है पैसेज में, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत है. लेकिन ऑप्शन बी में सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा सही स्टेटमेंट दिया गया है, इसलिए इसे हम टिक करेंगे. और इस पर से हम ये कह सकते कि इट इज़ पॉसिबल दैट इन अ पेस्ट पॉपुलेशन द इंडिविजुअल्स विल बिहेव डिफरेंटली ड्यू टू देयर जेनेटिकली मेकअप. क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो टिपिकली रिप्रोडक्शन से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक स्प्रेड होता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि it is possible that in a pest population the individuals will behave differently due to their genetic makeup. Now next question, why is the use of chemical pesticides generally justified by giving the examples of poor and developing countries? तो केमिकल पेस्टिसाइड्स का जो यूज़ है वो जस्टिफाई क्यों किया जाता है, किसका एग्जाम्पल देके कि पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ का एग्जाम्पल देके जस्टिफाई क्यों किया जाता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है डेवलप्ड कंट्रीज़ कैन अफोर्ड टू डू अवे विथ यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स बाय अडेप्टिंग टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, बट इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ टू यूज़ केमिकल पेस्टिसाइड्स. तो पैसेज अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप ये कह सकते हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का कहीं पर भी मेंशन नहीं है. सो ये ऑप्शन जो है हम वो डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं. और आफ्टर एलिमिनेटिंग फर्स्ट स्टेटमेंट, सो ए स्टेटमेंट विल गेट कैंसल्ड, बी स्टेटमेंट विल गेट कैंसल्ड, एंड
statement will get, D option will get cancelled. Now you will have C as your correct answer, because second statement is in poor and developing countries, the pesticides addresses the problem of epidemic diseases of crops and eases the problem of food problem. And third statement is saying the social and health cost of pesticides use are generally ignored in poor and developing countries. तो जो थर्ड स्टेटमेंट है ये हमें पैसेज में गिवन है, लेकिन वो सिर्फ पुअर कंट्रीज़ के लिए कह रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में उसने कुछ भी नहीं कहा है। जैसा कि आप पैसेज में देख सकते हो कि that the social and health cost of using, moreover in poor countries the prospect of imminent mass starvation or of an epidemic disease are so frightening, and that the social and health cost of using pesticides have to be ignored. तो कहाँ पे इग्नोर होता है? पुअर कंट्रीज़ में होता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, इसलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये हम कह सकते हैं। और इसे अगर हम एलिमिनेट कर देंगे तो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, और फर्स्ट जो है ए बी सी डी में है इसलिए वो डायरेक्टली एलिमिनेट ही होगा, और सी जो ऑप्शन है हमारा वो सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इन पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ the pesticides addresses the problem of epidemic diseases of crops and eases the food problem. This is given in the passage कि more or in poorer countries the prospect of imminent mass starvation or of an epidemic disease are so frightening that the social and health cost of using pesticides have to be ignored. सो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके आप इस क्वेश्चन के राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पैसेज इम्प्लाई। तो इम्प्लाई मतलब इम्प्लीकेशन क्या है, पैसेज का मीनिंग क्या है, निहितार्थ क्या निकाल सकते हैं हम इस पैसेज में से, और ये भी हमें पैसेज पे बेस्ड ही देना है इसका आंसर भी। तो स्टेटमेंट से अल्टरनेटिव्स ऑप्शन टू केमिकल पेस्टिसाइड्स शुड बी प्रमोटेड। सेकंड स्टेटमेंट है too much use of chemicals is not good for the health, for the ecosystem, and there is no scope for the improvement of pesticides and making their use sustainable. So जैसा कि हमें पैसेज में दिया गया है कि जैसा कि हमें पैसेज में दिया गया है कि अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है केमिकल पेस्टिसाइड के लिए वो प्रमोट करना चाहिए। लास्ट का जो कंक्लूजन पार्ट है पैसेज का वहाँ पे ये मेंशन है कि इन दिस वेरी फंडामेंटल सेंसेस देयर यूज ऑफ मे बी डिस्क्राइब्ड एज सस्टेनेबल इन प्रैक्टिस सस्टेनेबिलिटी डिपेंड्स ऑन कंटिन्यूअली डेवलपिंग न्यू पेस्टिसाइड्स एंड दैट कीप एटलीस्ट वन स्टेप अहेड ऑफ द pesticides that are less persistent, biodegradable and more accurately targeted at the pest. तो ये लाइन हमें ये कहती है कि केमिकल पेस्टिसाइड के लिए अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, यही कह रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा वो करेक्ट है, तो इसे हम टिक कर लेते हैं। एंड too much use of chemicals is not good for the ecosystem, and this is a general statement without reading passage also you can say this that कि टू मच यूज़ अगर हम करेंगे केमिकल्स का तो वो हमारे लिए भी गुड नहीं है और इकोसिस्टम के लिए भी गुड नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सी स्टेटमेंट है देयर इज़ नो स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड मेकिंग देयर यूज सस्टेनेबल। तो ये तो आउट ऑफ स्कोप ऑफ द पैसेज है और एक्सट्रीम स्टेटमेंट है बिल्कुल भी। देयर इज़ नो स्कोप मतलब कुछ स्कोप ही नहीं, बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये, इसलिए इसे हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर देंगे। तो आफ्टर एलिमिनेटिंग सी यू विल हैव ए एंड बी एज योर करेक्ट आंसर एंड दैट इज़ गिवन इन द डी ऑप्शन। बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी अबव आर करेक्ट। सो
The D statement is the correct one for this question. So finally both the statements A and B above are correct. This is a right answer for this question. Hope so all of you understood well, and if you have any doubts you can ask me in the comment section, and stay tuned with me. We will solve next passage in the next lecture. And learn with fun, do not take burden, enjoy learning. Thanks for watching.